Yes. So this is my PowerPoint presentation, today's lecture. Okay. And this is the slideshow. Yeah. Is title slide visible, Sanjeevni? Okay. What about my voice? Okay, thank you so much. Now you can switch off your mic. I am going to start the lecture number 8, unit number 3, classical mechanics. And today's date is 1st Feb 2022. Okay. Till now we have almost completed 98% portion of unit number 3, and this will be the last lecture of unit number 3. So today we are going to finish the unit number 3, and on 4th February we will take some important topic of unit number 4. Okay. So today we will see how to derive the equation of motion, for compound pendulum using Hamilton's equation or using Hamiltonian function. मतलब h का use. What is Hamiltonian function? Hamiltonian function means h, capital H. Okay, using capital H or using the equation of Hamilton's, we will derive the equation of motion for compound pendulum. So first of all, you should know about the compound pendulum. I already told you in the lecture that is related to the unit number 2, what is compound pendulum. So if you want to know about the compound pendulum, first of all you should know what is simple pendulum. Simple pendulum means one particle system. Simple pendulum means single particle system, and compound pendulum means many particle system. Okay, single particle or single thing is suspended to a rigid support, and if it is set into the oscillation, that is called simple pendulum. And compound pendulum means many particles. It is a rigid body, consists of many particles. बहुत सारे particles से बना हुआ है compound pendulum. Simple pendulum एक ही particle से बना है. Compound pendulum बहुत सारे particles से बना है. किसी भी shape का हो सकता है, वो बार शेप का हो सकता है, किसी भी आर्बिटरी शेप का हो सकता है कंपाउंड पेंडुलम. अगर तुमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो तुमने इस टाइप का देखा होगा बार पेंडुलम. इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का पेंडुलम देखा होगा, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं. ओके, और इसको एक पॉइंट से सस्पेंड करते हैं और ये क्या करता है, ऑसिलेट होता है. ओके, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का पेंडुलम है, इसको बार पेंडुलम बोलते हैं. लेबोरेटरी में तुमको देखा होगा. बार पेंडुलम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. ये भी कंपाउंड पेंडुलम का एक एग्जाम्पल है, और इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और जो सेंटर में द सेंटर होल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास. ओके, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस पेंडुलम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये लेबोरेटरी में जब हम ये बार पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस लिए करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी निकालने के लिए हम यूज करते हैं इस बार pendulum का. So bar pendulum is also the example of compound pendulum. Okay, but compound pendulum need not be the shape of only bar. rectangular shape का ही compound pendulum नहीं हो सकता, किसी भी shape का हो सकता है, square shape का हो सकता है या किसी भी shape का हो सकता है. but condition ये है कि वो चीज many particles से बननी चाहिए, more than one particle से बननी चाहिए. ठीक है, किसी भी arbitrary shape का हो सकता है. So now we will consider any arbitrary shape. Okay, suppose this is any arbitrary shape. ये एक चप्पल shape का दिख रहा है, किसी भी तरीके का shape हो सकता है, ये any arbitrary shape. So जो वो ये white portion जो दिख रहा है, this white portion you can see that this white portion is nothing but compound pendulum, and this portion is made up of many particles. बहुत सारे particles से बना है suppose करो, और उसका shape इस तरीके का arbitrary shape है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा shape है, कोई भी shape का हो सकता है. तो इस चप्पल के शेप के चीज को मैंने कंपाउंड पेंडुलम बोल दिया बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स. ओके, सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट. You can see this black point, this is black point and this is center point. This is also called the center of gravity. Okay, and this is also called center of mass. तो क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल से कंपाउंड पेंडुलम बना है तो उसका जो मास है एक सेंटर पे कंसंट्रेट करता है. जैसे हमने पढ़े थे कि एटम जो होता है, एटम का सारा मास सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पे. उसी तरीके से अगर कंपाउंड पेंडुलम एक ऐसी रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब बहुत टफ बॉडी है, टफ बॉडी मतलब उसका पार्टिकल यहां से वहां हिलेगा नहीं. जैसे पत्थर के अंदर पत्थर के पार्टिकल्स है, पत्थर को तुम फेंकते हो, अगर पत्थर बहुत स्ट्रांग है तो पत्थर के अंदर के पार्टिकल हिलते नहीं है, पार्टिकल फिक्स होते हैं पत्थर के अंदर. ठीक है, तो पत्थर को भी हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी. उसी तरीके से ये जो चीज है इसके अंदर के पार्टिकल तस से मस नहीं होंगे, जहां है वहां ही रहेंगे.
इसलिए इस कंपाउंड पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी. सो इट इज अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप और उसका एक पर्टिकुलर मास कॉन्सेंट्रेट करता है सेंटर पे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं. तो सपोज करो कि ये व्हाइट पोर्शन एक कंपाउंड पेंडुलम है और सेंटर वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो कंपाउंड पेंडुलम का एक मास होगा. सपोज कैपिटल M इज द मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम और मास होने के कारण कंपाउंड पेंडुलम का वेट होने के कारण उस कंपाउंड पेंडुलम पे जो फोर्स रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. कोई भी बॉडी जिसका वेट होता है उसका वेट के वजह से जो फोर्स होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे तुम रोड पे चलते हो तो तुम्हारा वेट है, तो तुम्हारा वेट जब तुम रोड पे चलते हो तो तुम्हारे वेट के कारण क्या होता है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है ड्यू टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तुम्हारा जो वेट है उसका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. उसी तरीके से ये कंपाउंड पेंडुलम है, इसका मास है तो इसका जो वेट है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी इज नथिंग बट द वेट एंड इट्स वेट इज एक्टिंग अलोंग दी डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, कैपिटल M है मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम एंड स्मॉल g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू. तो इसके वेट के कारण जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. और सपोज करो इस कंपाउंड पेंडुलम को, सपोज दिस कंपाउंड पेंडुलम, आई एम हैंगिंग दिस कंपाउंड पेंडुलम एट अ पॉइंट S. सपोज करो दिस इज द पॉइंट S एंड आई एम हैंगिंग, लटका के रखा है कंपाउंड पेंडुलम को, लटका के रखा है एक पॉइंट पे. ओके, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. जिस पॉइंट पे चीजों को लटका के रखते हैं, जैसे दीवार पे तुम कपड़े टंगा के रखते हो तो हैंगर लगाते हो, ठीक है, तो वहां पे कपड़े लटका के रखते हो तो जो हैंगर होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. उसी तरीके से कंपाउंड पेंडुलम को तुमने एक पॉइंट पे अटका के रखा है, लटका के रखा है, that point is called point of suspension. Suppose S is the point of suspension and capital M is the mass of the pendulum, and suppose this pendulum is not possessing any type of oscillation, zero oscillation, एकदम खड़ा का खड़ा ही है, रेस्ट पे है. Suppose this compound pendulum is at rest, it doesn't contain any loss oscillation, it doesn't execute any oscillation. तो ये रेस्ट पोजीशन पे. अब मैंने क्या किया, इस कंपाउंड पेंडुलम को थोड़ा सा हिलाया. ओके, नाउ आई एम गिविंग अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू दिस कंपाउंड पेंडुलम. इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा सरका दिया. थोड़ा सा सरकाने के वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आने के वजह से कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू होगा अपने एक्सिस पे. So along the point of suspension it undergo oscillation. तो सपोज इस कंपाउंड पेंडुलम को थोड़ा सा सरका दिया मैंने इस तरीके से, ये देखो एरो, ये जस्ट लुक एट दिस येलो एरो, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस येलो एरो आई एम गिविंग इट अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. इसके वजह से जो ये सस्पेंशन पॉइंट एस था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम जो है वो सरक गया थोड़ा इस साइड में. कितने एंगल से सरकाया तुमने, ओके, आई एम गिविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा एंगल से उसको सरकाया. तो सरकाने के कारण ये क्या करेगा, ये इट possesses स्मॉल ऑसिलेशंस, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा. ओके, ऑसिलेट करना शुरू करेगा अबाउट अ पॉइंट O, ओके, एंड थ्रू एन सस्पेंशन पॉइंट S. तो इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू करेगा. और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है, ऑसिलेट करती है, तो तुमको पता है उस बॉडी में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तुमने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, 12th स्टैंडर्ड, यू माइट हैव स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड. इफ एनी बॉडी possesses रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, इट possesses मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कॉल्ड आई. तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसको क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो सपोज आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस बॉडी इज नथिंग बट द कंपाउंड पेंडुलम, एंड दिस कंपाउंड पेंडुलम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S. ये यहां से S पे लटका के रखा है और S के अबाउट ये रोटेट हो रही है. बॉडी क्या हो रही है, ये कंपाउंड पेंडुलम क्या हो रहा है, अबाउट अ पॉइंट S ये रोटेट हो रहा है. तो रोटेशन के कारण क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा I इज इक्वल टू IC प्लस ML स्क्वायर. अब ये कहां से आया, I इज इक्वल टू IC प्लस ML स्क्वायर. तो तुमको पता है कंपाउंड पेंडुलम का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है C. ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको बोल दिया मैंने IC, प्लस M मतलब
mass of the pendulum. Okay, mass of the compound pendulum. L means length of the compound pendulum. Length of the compound pendulum क्या है? ये वाला. The distance between the point of suspension, just look at my mouse arrow, the distance between the point of suspension S and center of gravity, this is called the length of the compound pendulum. L means length of the compound pendulum, capital M means mass of the compound pendulum, and IC means moment of inertia passing through center of gravity. क्योंकि क्या होगा? center of gravity मतलब सेंटर में, सेंटर में होने के कारण क्या होगा? वो सेंटर के अबाउट भी रोटेट करेगी बॉडी, तो उसका भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. एस के अबाउट भी रोटेट करेगी, एस मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो एस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट भी रोटेट कर रही है, तो दो इनर्शिया हो गया यहाँ पे. तो वो टोटल इनर्शिया क्या होगा? आईसी प्लस एमएल स्क्वायर. आईसी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास. सो ये याद रखना है हमको, I is equal to IC plus ML square. You have to remember this equation, I is equal to IC plus ML square. It means that the total moment of inertia of compound pendulum passing through the point of suspension S. Okay, so I is equal to IC plus ML square. इसका काम आने वाला है तो इसको याद रखो. Okay, तो जो चीज मैंने बोला है, जो चीज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, कंपाउंड पेंडुलम लिया मैंने, उसको स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया, इसके कारण उसको ऑसिलेशन सेट हुआ, ऑसिलेशन सेट होने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. वेरी सिंपल. अब तुम बोलोगे कि व्हाई देयर इज नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपाउंड पेंडुलम. ओके, माय मेन फोकस, माय मेन एम इज टू कैलकुलेट द लैग्रेंजियन फंक्शन, बिकॉज using that Lagrangian function and using that Hamiltonian function, we have to calculate, we have to determine the equation of motion. Okay, so for knowing the Lagrangian function, we should know about the kinetic energy and potential energy. You know that L is equal to T minus V. L is TV. शॉर्ट में याद रखना है कि L मतलब TV होता है, TV मतलब T minus V. T means kinetic energy, V means potential energy. अगर kinetic energy तुमको कैलकुलेट करना है तो रोटेशनल सिस्टम की kinetic energy क्या होती है? आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, आई शुड नो अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई. एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फॉर रोटेशनल सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I omega square, and for simple system kinetic energy is half mv square. So I am not talking about the simple system, I am talking about the rotational system, because the compound pendulum is oscillate about a point of suspension, and through that oscillation it possesses rotation. So it is rotating. If it is rotating, so I should know about its kinetic energy if I want to calculate the Lagrangian function. So what is kinetic energy? Half I omega square. सो मुझे आई पता होना चाहिए, इसलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं. अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पता होगी, और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है तो मुझे लैग्रेंजियन पता होगा, क्योंकि लैग्रेंजियन क्या है? टी माइनस वी. तो टी मतलब काइनेटिक एनर्जी, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं. तो इनडायरेक्टली मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए निकाल रहा हूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन निकालना है. ओके, सो जो मैंने बक कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, उसी को मैं स्लाइड पे लिखूंगा. अभी कैसे लिखूंगा? तो देखो क्या लिख रहा हूं. कंसिडर अ कंपाउंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट एस विद अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सी. ये एस से सस्पेंड किया और सी है क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. जो मैं बक किया, जो मैंने बताया वही मैं लिख रहा हूं स्लाइड पे. ओके, इस तरीके से इस डेरिवेशन को लिखना है. कंसिडर अ कंपाउंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट एस विद अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सी. ओके, and suppose it executing small oscillation in vertical plane with an angle theta. It possesses small oscillation. I already told you the angular displacement is theta and it is executing small oscillation through an angle theta. Now look at this diagram. What I have changed, I have made the changes. I have just drawn the perpendicular from point C to B. ये perpendicular draw किया, बाकी कुछ नहीं किया. ये जो displaced position है, देखो लास्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं क्या किया मैंने एक्स्ट्रा. ये displaced position है. ओके, ये रेस्ट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, डिस्प्लेस पोजीशन से लेना देना. ये डिस्प्लेस पोजीशन है. सी में से क्या हुआ? परपेंडिकुलर सी में से निकाला और बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां पे हो गया 90 डिग्री एंगल. ओके, तो लुक एट दिस डायग्राम. आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट सी टू दिस लाइन ओ एस एट पॉइंट बी. तो ये परपेंडिकुलर. सो एस बी सी इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्रायंगल.
SBC is nothing but the right angle triangle. Why I have drawn this perpendicular? What is the purpose of drawing that? क्या पर्पस है ड्रॉ करने का? जरूरत क्या है ड्रॉ करने की? क्यों मैंने ड्रॉ किया? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम. हाइट क्यों निकालना है? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का काम होगा. अब भाई और एक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? mgh. जैसे तुम्हारा mdh मसाले होते हैं, वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. और हाइट पता होनी चाहिए. अगर तुम्हें हाइट पता है कंपाउंड पेंडुलम की, तब जाके तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई. हाइट पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गई. तो हाइट क्या? हाइट पता करने के लिए मैंने क्या किया? सी पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे एट पॉइंट बी. तो ये जो बीएस दिख रहा है, द लेंथ बीएस, दिस इज द बीएस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड एस, दैट इज बीएस. सो बीएस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम. तो अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो जो डिस्टेंस बचता है बी से एस तक का, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ पेंडुलम. और कैसे निकालते हैं? यहां पे थीटा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है. जस्ट कॉस थीटा बोलो. कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज द थीटा. ओके, कॉस थीटा मींस एडजेसेंट साइड. व्हाट इज एडजेसेंट साइड? बीएस. व्हाट इज हाइपोटेनियस? एल, लेंथ एल. So cos theta is nothing but bs upon L. So bs is nothing but L cos theta. तो easily निकाल सकते हैं हम bs की वैल्यू. So bs की वैल्यू होगी L cos theta because this is a right angle triangle using trigonometry rule. If I calculate the cos theta, this is the angle theta. Cos theta means adjacent side. Adjacent side means bs. Hypotenuse means the side opposite to the right angle triangle, that is called hypotenuse. So adjacent side bs upon hypotenuse, that is bs upon L, that is nothing but cos theta. So cos theta is bs upon L. So bs is what? L cos theta. Okay, L into cos theta. So bs निकल गया. तो bs निकल गया मतलब हाइट पता चल गई मुझे. और हाइट पता चल गई तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी. और दोनों चीजें मुझे चाहिए अगर मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन निकालना है. सो व्हाट इज लैग्रेंजियन फंक्शन? t माइनस वी. ओके, तो ये सारी चीजें, ये डायग्राम से मैंने bs निकाल लिया और इसी डायग्राम के भरोसे पे मैंने I भी बता दिया कि I इज इक्वल टू IC प्लस ml स्क्वायर. दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपाउंड पेंडुलम. तो जो बताया वो लिख रहा हूं. कंसिडर अ कंपाउंड पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट S विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी C. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास इन दिस केस. ओके, then suppose it executing a small oscillation theta and it is undergo oscillations. Okay, and this oscillation it undergo execute small oscillation and these oscillations are nothing but simple harmonic motion. ये oscillation क्या रहेंगे? पीरियोडिक रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. पीरियोडिक रहेंगे मतलब एक इक्वल इंटरवल टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की क्वांटिटी सेम रहेगी. ओके, तो ये क्या रहेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करेगा. ये हमने बता दिया. ओके, और फिर बता रहा हूं मैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो मैं बोल रहा हूं वही स्लाइड पे मैंने लिखा हूं, तो देखो, कॉन्सेंट्रेट करो. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम अबाउट एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन थ्रू पॉइंट एस. Point S is nothing but the point of suspension. And what is moment of inertia? I is equal to IC plus ML square. Very simple. I is equal to IC plus ML square, and IC means moment of inertia of center of gravity, moment of inertia about an axis passing through center of mass, and capital M is nothing but mass of the pendulum. This derivation I already taught you in unit number 2. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार फिर से बोल रहा हूँ. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये मैंने सारी चीजें बताया था, उस लेक्चर को तुम रिकॉल करो तो ये सारी चीजें तुमको पता चलेगी. ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I is equal to IC plus ML square. Suppose this is equation number 1. Okay, now this is the moment of inertia of compound pendulum passing through an axis about an point S. Okay, now look at this IC. IC is moment of inertia of center of mass. And you should remember, you might have studied in 12th standard, the moment of inertia of center of mass is nothing but mk square. Moment of inertia of center of mass and moment of inertia of center of gravity is nothing but mk square. Capital M, k square. And what is k? K is radius of gyration. This equation or this moment of inertia about center of mass, the formula you might have studied in 12th standard.
12th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ते हैं, जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तब हम ये पढ़ते हैं कि आईसी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। आईसी मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट एम के स्क्वायर। एम मतलब कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम, एंड के कैपिटल के मींस रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब ऐसा डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस अप टू विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट। सो डिस्टेंस अप टू विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट। मान लो कि तुम एक रोड पे चल रहे हो और 1 किलोमीटर तक रोड एकदम स्मूथ है, और 1 किलोमीटर के बाद रोड खराब हो गया, रोड स्मूथ नहीं है, रोड खराब है, कच्चा रास्ता है। 1 किलोमीटर तक पक्का रास्ता है, एकदम रोड स्मूथ है, तो 1 किलोमीटर तक पूरा का पूरा रोड सेम है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 किलोमीटर इज रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद रास्ता खराब है तो उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को तुम रेडियस, अब सपोज करो कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, कांस्टेंट है, तो तुम 1 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मींस द डिस्टेंस अप टू विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो आईसी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इज रेडियस ऑफ gyration. Now you know that IC is equal to mk square. Just put this value in equation number 1. So putting the value of IC in equation number 1, you will get that equation number 1 become IC की जगह पे mk square रखो तो क्या बन जाएगा? I is equal to mk square plus ml square. Okay. Now look at this equation. M and m here is m, here is also m is common. So after taking m common in the bracket, you will get k square plus l square. This is the equation number 2. So this is the moment of inertia. So final equation for moment of inertia for compound pendulum, I is equal to capital M in the bracket k square plus l square. M is the mass of the compound pendulum, k is the radius of gyration, and small l is the length of the compound pendulum. So this is, suppose this is equation number 2. Easily I calculate कर लिया मैंने, moment of inertia I have calculated. So I can easily calculate the kinetic energy. So what is the kinetic energy? Kinetic energy for rotational system. Okay, just remember that the kinetic energy for simple system is half mv square, mass into velocity square, half into mass into velocity square for simple system, for linear system. But for rotational bodies, for rotational system, what is kinetic energy? Half I omega. Mass will be replaced by moment of inertia and simple velocity will be replaced by angular velocity. So half I omega square. So what is kinetic energy? The kinetic energy of this rotational system, kinetic energy of the rotational system or kinetic energy for the compound pendulum is nothing but T is equal to half I omega square. Okay, what is I? Moment of inertia. What is omega? Angular velocity. So I की value मुझे पता है. I know the value of I from equation number 2. So just put the value of I from equation number 2. Okay, so T is kinetic energy of the system, I is moment of inertia, and omega is angular velocity. Now what is angular velocity? You know that angular velocity is the rate of change of angular displacement. जैसे simple velocity क्या होता है? Rate of change of distance, rate of change of displacement. वैसे ही angular velocity क्या होता है? Rate of change of angular displacement. So angular velocity omega means d theta by dt. Theta क्या है? Angular displacement. Rate of change of angular displacement मतलब d theta by dt. So omega is d theta by dt. Okay, and d theta by dt in classical mechanics I can write as theta dot. Theta dot. Okay. और टाइम डेरिवेटिव के क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे लिखते हैं? थीटा डॉट लिखते हैं. तो ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा डॉट. वेरी सिंपल. Because omega is angular velocity and angular velocity is rate of change of angular displacement, and what is angular displacement? Theta. So omega is d theta by dt. तो omega की जगह मैं theta dot लिख सकता हूँ because d theta by dt क्या होता है? Theta dot. तो in place of omega I can write as theta dot. Very simple. Okay. So now this equation half I omega square, and in place of omega I can write as d theta by dt because omega is rate of change of angular displacement. Okay. In place of omega I can write as d theta by dt, and in classical mechanics d theta by dt means theta dot. थीटा के ऊपर डॉट लगा दो मतलब टाइम डेरिवेटिव होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में. So t is nothing but half I theta dot square. So d theta by dt is omega and d theta by dt is nothing but theta dot. Very simple. This is the kinetic energy. Okay. Now you know the value of I also from equation number 2. I की वैल्यू क्या है? M
m square k square plus l square. Very simple. This is the equation number 2. I की वैल्यू क्या है? m in the bracket k square plus l square. Very simple. तो I की वैल्यू भी रख दो उसमें. तो I की वैल्यू रखने के बाद after putting the value of I will get the kinetic energy. T is equal to half capital M k square plus l square theta dot square. This is, suppose this is equation number 3, and where you have put the value of I from equation number 2. Very simple. So this will be the kinetic energy. तो kinetic energy मिल गई मुझे. T is equal to half m in the bracket k square plus l square theta dot square. m क्या है? Mass of the compound pendulum. k क्या है? Radius of gyration. l क्या है? Length of the compound pendulum. theta dot क्या है? Angular velocity of compound pendulum. Very simple. This is the equation number 3. सो अब काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई, तो मेरा आधा काम तो हो गया. लैग्रेंजियन फंक्शन मुझे निकालना है. तो लैग्रेंजियन फंक्शन का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, दैट इज टीवी. टी तो निकल गया. अब टी, टेलीविजन का टी निकल गया और विजन का वी तो बाकी है. सो व्हाट इज का पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब तुम्हारा MDH होता है MGH. ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू पॉइंट S. देखो S है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कंपाउंड पेंडुलम ऐसे डोल रहा है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S है. तो मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है. मोशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालनी पड़ेगी. सो पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नथिंग बट m इंटू जी इंटू एच. और हाइट तुमको पता है, मैं जब डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा तो हाइट बताया था bs, हाइट भी तुमको पता है. ओके, सो potential energy is nothing but capital V m into G into H. m constant, G constant, H height कितनी है? bs. From the diagram height is bs और bs की वैल्यू क्या थी? L cos theta, जो हमने डायग्राम में निकाला. फिर से डायग्राम दिखा रहा हूं, देखो. I am showing you diagram again. Okay, so this is diagram and this is bs. This is bs and what is the value of bs? L cos theta. So height of the pendulum is L cos theta. Very simple. So after calculating the kinetic energy is this, and what is potential energy? mg into bs. bs means height, and what is the value of bs? L cos theta. Okay, but यहाँ पे मैंने minus लिखा है. Okay, why I have put the minus sign here? Because height is L cos theta, but I am putting minus here because I am measuring the height from top to bottom. ऊपर से नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं. हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट आई एम पुटिंग द माइनस नेगेटिव साइन बिकॉज आई एम मेजरिंग द हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट बॉटम टू टॉप. नीचे से ऊपर हाइट मेजर नहीं कर रहा हूं, ऊपर से नीचे मैं हाइट मेजर कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां पे माइनस लगाऊंगा. तो हाइट जो है bs की वैल्यू है L cos theta, but I am putting minus here because I am measuring the height from top to bottom. That's why I am incorporating the negative sign, but you should remember that height cannot be negative. Height cannot be negative, but I am using the sign convention and I am using minus sign because I am measuring the measurement. I am taking the measurement of height from top to bottom. That's why I am incorporating the minus sign here. So height will be minus L cos theta. So potential energy is m into g minus L cos theta, और ये माइनस को मैं सामने ले लूंगा तो क्या आएगा? mgl cos theta. तो potential energy is nothing but minus mgl cos theta. माइनस को मैंने आगे ले लिया, minus mgl. So potential energy will be minus mgl cos theta. Suppose this is equation number 4. So in equation number 3 I have calculated the kinetic energy. From equation number 4 I have calculated the potential energy. So I can easily calculate the Lagrangian function now. यहां तक का डेरिवेशन, लैग्रेंजियन फंक्शन तक निकालने तक का डेरिवेशन सेम है जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था. उसके आगे जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो नया है, ठीक है. तो अभी हम लैग्रेंजियन फंक्शन निकालेंगे. सो यू नो दैट द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम और लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ द सिस्टम और लैग्रेंजियन फॉर द कंपाउंड पेंडुलम इज नथिंग बट L इज इक्वल टू टी माइनस वी, और टी की वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो टी इज नथिंग बट हाफ m k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस what is potential energy, value of potential energy minus mgl cos theta from equation number 3 और 4. 3 में kinetic energy निकाला, equation number 4 में potential energy निकाला. Okay, so we have derived the potential energy from equation number 4 in equation number 4, and in equation number 3 we have derived kinetic energy. Just put the value of kinetic energy and potential energy from equation number 3 and 4 into this equation. So this is the kinetic energy, half m k square plus L square theta dot square from equation number 3 minus
यहां पर माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस mgl cos थीटा अभी निकाला था मैंने, माइनस mgl cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम, okay, now I will solve this bracket, minus minus plus, so it will become L is equal to half m k square plus L square theta dot square minus into minus plus plus mgl cos theta, and this is equation number 5. यहां तक के स्टेप्स यूनिट नंबर 2 में कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो हमने निकाला था, यहां तक का डेरिवेशन डायग्राम से लेके सारी चीजें सेम है। अब इसके बाद जो आने वाली चीजें हैं वो अलग है, लेकिन वो चीजें भी तुम फैमिलियर होंगे। लास्ट लेक्चर में सिंपल पेंडुलम में भी हमने एल तक यहां तक एक्सप्रेशन किया था और उसके बाद हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज किया था। तो यहां तक की स्टेप्स सेम है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए भी यहां तक के स्टेप्स सेम थे जो यूनिट नंबर 1 और 2 में हमने चीजें देखी थी। अब जो आगे दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा अब आएगा एच का रोल, अब आएगा हीरो की एंट्री और अब आएगी एच का रोल। ठीक है, अब तक एल का रोल था, अब आएगा एच का रोल। तो एच कौन है? यहाँ पे हीरो है, क्योंकि हमको निकालना है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम। तो हैमिल्टोनियन यहाँ का हीरो है, हैमिल्टन्स यहाँ का हीरो है। तो अभी हम हैमिल्टन्स का इक्वेशन यूज करेंगे। एल तक के स्टेप सेम है, तो यहां तक तुम्हारे लिए फैमिलियर डेरिवेशन था, अब तुम्हारे लिए अनफैमिलियर है। लेकिन अगर तुमने लास्ट लेक्चर किया होगा सिंपल पेंडुलम का, तो ये भी तुम्हारे लिए फैमिलियर होगा। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर हैमिल्टन्स? व्हाट इज हैमिल्टन्स इक्वेशन? ओके, व्हाट इज हैमिल्टोनियन फंक्शन? ओके, so this is the equation. Generally Hamilton's function or Hamiltonian of the system is given by this equation. You should remember this equation. This is the simple equation for Hamiltonian function or Hamilton's function. H is equal to summation over k pk qk dot minus L. Pk is generalized momentum, you know that. Qk dot is generalized velocity, that I already explained in the last lecture. L is Lagrangian of the system, तो L है, pk है, qk है, और k मतलब सब पार्टिकल्स के लिए अगर लिखेंगे इक्वेशन तो हमको समेशन लिखना पड़ेगा। सो समेशन ओवर k मींस k इज इक्वल टू 1 to n. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर हैमिल्टन्स फंक्शन। h इज इक्वल टू समेशन ओवर k pk qk डॉट माइनस l। ओके, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मोमेंटम की, यहाँ पे जो हम एंगुलर मोमेंटम की या जो भी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो क्या है? अलोंग द एंगल थीटा, अलोंग द एंगल थीटा। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाइड करेंगे कंपाउंड पेंडुलम के लिए। तो हमारी जो ये qk डॉट क्या है? जनरलाइज वेलोसिटी, और हमारी जो कंपाउंड के लिए वेलोसिटी क्या है? थीटा डॉट। सो qk डॉट की जगह मैं थीटा डॉट लिख सकता हूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज द कंपाउंड पेंडुलम इज रोटेटिंग थ्रू एन एंगल and it possesses angular displacement, and due to that angular displacement it possesses angular velocity. so यहां पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है qk डॉट, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं थीटा डॉट से, क्योंकि हम कंपाउंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं और कंपाउंड पेंडुलम में वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? थीटा डॉट। सो यहां पे qk डॉट क्या होगा? थीटा डॉट। और मोमेंटम क्या होगा? pk, तो k की जगह थीटा लिख दूंगा मैं, क्योंकि यहां पे हम थीटा की बात कर रहे हैं, यहां पे एंगल की बात हो रही है, इसलिए वहां पे जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है pk, जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट है pk को मैं क्या कैसे लिख सकता हूं? p थीटा। ओके, तो इसको मैं मॉडिफाइड करूंगा। सो आई विल मॉडिफाइड दिस इक्वेशन नंबर 6. So how can I modify this equation number 3? In place of pk I can write as p theta, in place of qk dot I can write as theta dot, because qk dot is generalized velocity, but here in compound pendulum the velocity is angular velocity, that is theta dot. And here pk is generalized momentum, but for the compound pendulum k can be replaced by theta, because we are talking in the terms of theta. That's why in place of pk I can write p theta. Okay, so put the value of pk and put the value of qk dot in equation number 6. तो pk की जगह मैंने p थीटा लिखूंगा, qk की जगह मैं थीटा डॉट लिखूंगा, तो क्या होगा इक्वेशन? सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स h इज इक्वल टू p थीटा थीटा डॉट माइनस l। तो pk की जगह p थीटा और qk डॉट की जगह थीटा डॉट, समीशन हट जाएगा। ठीक है, हम एक होल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम समीशन हटा देंगे, तो h इज इक्वल टू p थीटा थीटा डॉट माइनस एल। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इस तरीके से मॉडिफाई होगा। तो इक्वेशन नंबर 7 इसको बोलता है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 होना चाहिए, लास्ट वाला जो है, दैट विल बी द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. सो इक्वेशन नंबर 6, तो हियर इन प्लेस ऑफ इक्वेशन नंबर 6 दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. 7 in place of equation number 7 this is equation number 6. So therefore equation number 6 becomes, the equation will modified as h is equal to p theta theta dot
माइनस एल। तो इस तरीके से मॉडिफाई होगा, पी के की जगह मैंने पी थीटा लिखा, क्यू के डॉट की जगह मैंने थीटा डॉट लिखा और समेशन को हटा दिया क्योंकि थीटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम इसलिए। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो ये चीजें मुझे मिल गई। ओके, अब ये एच का बहुत बड़ा रोल है, इसी एच से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हैमिल्टन्स का इक्वेशंस जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा तुमको याद रखना है। जनरल इक्वेशन ये है इक्वेशन नंबर 6, इसमें तुमको पी के की जगह पी थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में बात करें, क्यू के डॉट मतलब वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए क्यू के डॉट की जगह थीटा डॉट लिखना है, पीके की जगह पी थीटा लिखना है। और ये इक्वेशन जो मॉडिफाई होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द हैमिल्टन्स इक्वेशन। ओके, दिस इज हैमिल्टन्स इक्वेशन, पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, इसमें पी थीटा क्या है, जनरलाइज मोमेंटम, दैट इज जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट। थीटा डॉट क्या है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एल क्या है, लैग्रेंजियन। एल तो मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, बट मुझे पी थीटा नहीं पता। थीटा डॉट ठीक है, पी थीटा मुझे नहीं पता, एल पता है। तो जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होता है, del L by del theta dot, generalized momentum coordinate. So momentum conjugate to coordinate theta, momentum, this p theta, momentum conjugate to this theta is given by minus del L by del L by del theta dot. So p theta का फॉर्मूला याद रखना है। इस p theta को लैग्रेंजियन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, p theta is equal to del L by del theta dot, this suppose this is equation number 8, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। P theta can be written in terms of the Lagrangian because this is momentum conjugate to the theta coordinate, and P theta you have to remember the equation P theta, you have to remember the equation for P theta, that is del L by del theta dot. Okay, Lagrangian को अगर partially differentiate करोगे theta dot के साथ तो तुमको क्या मिलेगा, P theta, ये equation तुमको याद रखना है। Okay, so P theta is nothing but del L by del theta dot, this is the equation number 8. So अभी मुझे P theta निकालना है। इक्वेशन नंबर 7 में मुझे क्या चाहिए, पी थीटा चाहिए, एल तो मुझे पता है। सो पी थीटा चाहिए, तो पी थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में। ओके, यू हैव टू डिफरेंशिएट एल पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। सो एल कहां पर है, एल का इक्वेशन कहां पे कौन सा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5, means you have to differentiate the equation number 5, you have to differentiate the L with respect to theta dot। तो ये देखो थीटा डॉट वाली टर्म है, ये यहां पे थीटा डॉट है क्या, नहीं, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। इफ यू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो थीटा डॉट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। दूसरी टर्म में तो थीटा डॉट नहीं है, तो दूसरी टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को ही डिफरेंशिएट करना है। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 5, यू हैव टू डिफरेंशिएट द फर्स्ट टर्म। So what is the derivative of first term with respect to theta dot? हाफ क्या है कांस्टेंट, m क्या है कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, l क्या है कांस्टेंट, थीटा डॉट स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। सो थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट क्या होता है, ट्वाइस थीटा डॉट। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ट्वाइस x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस y, वैसे ही थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट टू थीटा डॉट। तो ये टर्म डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, पहली टर्म डिफरेंशिएट करने, दूसरी टर्म डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे थीटा डॉट ने दूसरी टर्म अपने आप 0 हो जाएगी। सो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट होता है ट्वाइस थीटा डॉट। ओके, तो इस तरीके से मुझे अगर पी थीटा निकालना है तो पी थीटा का फॉर्मूला क्या है, P theta is nothing but del L by del theta dot. So I will differentiate L with respect to theta dot, means I will differentiate equation number 5 with respect to theta dot. तो इक्वेशन नंबर 5 जो देखो ये फिर से इसको मैं थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, ये कांस्टेंट है, थीटा डॉट स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा ट्वाइस थीटा डॉट, दूसरा टर्म 0 हो जाएगा और ये आएगा del L by del theta dot. ओके, सो to calculate p theta I will differentiate equation number 5 with respect to, so differentiate equation number 5 with respect to theta dot. So after differentiating we will get del L by del theta dot is equal to half m k square plus l square, ये कांस्टेंट है। थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्वाइस थीटा डॉट, ये बताया था, प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जो मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 5 में। सेकंड टर्म का 0 हो जाएगा बिकॉज सेकंड टर्म डजंट कंटेन थीटा डॉट, so that's why the derivative of second term with respect to theta dot 0.
और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म में हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहां पे थीटा डॉट स्क्वायर था, तो थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस थीटा डॉट। सो हमको मिल गया डेल l बाय डेल थीटा डॉट। सो हाफ हाफ कैंसल, ओके, 2 कैंसल, ये 2 डिनोमिनेटर में, ये 2 न्यूमरेटर में, 2 कैंसल। अब बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास बचा डेल l बाय डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, इंटू थीटा डॉट। तो ये बच गया मेरे पास। और तुमको पता है डेल l बाय डेल थीटा डॉट मतलब p थीटा। देखो फिर से मैं इक्वेशन नंबर 10 बता रहा हूं, देखो डेल l बाय डेल थीटा डॉट मींस p थीटा। सो डेल l बाय डेल थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, डेल l बाय डेल थीटा इज डेल l बाय डेल थीटा डॉट इज नथिंग बट हाफ, डेल l बाय डेल थीटा डॉट इज नथिंग बट m k स्क्वायर plus l square theta dot, that is nothing but p theta from equation number 8. So putting this value in equation number 8, we will get p theta is equal to m k square plus l square theta dot. Okay, del l by del theta मतलब p theta होता है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 8 क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। del l by del theta की वैल्यू यहां रखेंगे तो p theta क्या बन जाएगा, p theta will be m k square प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9, और इसमें से थीटा डॉट भी निकाल सकते हैं। इफ आई वांट टू कैलकुलेट थीटा डॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को इस साइड में लेके जाएंगे तो p थीटा डॉट क्या हो जाएगा, थीटा डॉट इज नथिंग बट p थीटा डिवाइडेड बाय m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो अभी इक्वेशन नंबर 9 में मुझे मिल गया p थीटा, इक्वेशन नंबर 10 में मुझे मिल गया थीटा डॉट। ओके, वेरी सिंपल। सो p थीटा भी मिल गया मुझे और थीटा डॉट भी मिल गया। तो p थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या मिले, p थीटा डिवाइडेड बाय m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 9। तो p थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे और l की वैल्यू भी मुझे पता है। ओके, देखो अभी इक्वेशन नंबर, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इक्वेशन नंबर 7 पे। p थीटा की वैल्यू मिली मुझे, थीटा डॉट की वैल्यू भी पता है, नो प्रॉब्लम। p थीटा की वैल्यू मिली, थीटा डॉट की वैल्यू पता है, l की वैल्यू भी पता है। सो पुट द वैल्यू ऑफ p थीटा l इन इक्वेशन नंबर 7। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p थीटा एंड l इन इक्वेशन नंबर 7। तो p थीटा की वैल्यू भी रख दूंगा और l की वैल्यू भी रख दूंगा। ओके, तो इक्वेशन नंबर 7 क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 7 क्या है पहले बता रहा हूं। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। p थीटा की वैल्यू यहां पे रख दो, l की वैल्यू भी रख दो। l की वैल्यू क्या है, देखो l की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 5 से, दिस इज द वैल्यू ऑफ l, दिस इज द वैल्यू ऑफ l। l की वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी, p थीटा की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू रख दो उसमें। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ l एंड p थीटा, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p थीटा एंड l इन इक्वेशन नंबर 7, तो इक्वेशन नंबर 7 बिकम h इज इक्वल टू m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हो गया p थीटा की वैल्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ p थीटा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ p थीटा and you have put the value of p theta here, minus half m k square plus l square theta dot square minus mgl cos theta. Okay, so this is the value of Lagrangian, this is the value of Lagrangian, half m k square plus l square theta dot square minus mgl। तो ये l की वैल्यू रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रखा h की और इस पे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, फिर से देखो एक बार बता रहा हूं, p थीटा की वैल्यू p थीटा की वैल्यू क्या है, m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, और थीटा डॉट की वैल्यू ये है। तो देखो यहाँ पर p थीटा की वैल्यू रखा और l की वैल्यू रखा, तो h क्या हो गया, m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस l की वैल्यू ये है। ठीक है, हाफ m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस mgl cos थीटा। ओके, सो वी हैव पुट दिस बोथ द वैल्यूज ऑफ हियर। ओके, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यूज। ओके, तो अब देखो यहाँ पे h का टोटल वैल्यू क्या आ गया, h इज इक्वल टू m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। ओके, so we have kept this value. Now in next step just see that here m k square plus l square, here also half m k square plus l square theta dot square। तो यहाँ पे क्या है, m k square plus l square theta dot square माइनस
हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो देखो एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर सेम है यहाँ पे, तो ये कॉमन ले सकता हो, तो 1 माइनस 1/2 बचेगा। ओके, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? हाफ। एक में से हाफ को माइनस किया तो क्या बनता है? हाफ। 1 माइनस हाफ इज नथिंग बट हाफ। ओके, सो देखो ये 1 है और ये माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म में देखो एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये दोनों अगर कॉमन लेते हैं, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन लेते तो 1 माइनस हाफ बचेगा, और 1 माइनस हाफ मतलब हाफ होता है, तो यहाँ पे हाफ बचेगा, तो 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ, सो इट विल बी, ये दोनों टर्म मतलब 1 माइनस हाफ मतलब हाफ होता है, तो हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस mgl cos थीटा, तो ये बन गया h। ओके, सो दिस इज नथिंग बट हैमिल्टोनियंस फंक्शन। तो h की वैल्यू इतनी बड़ी निकलेगी, हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। और यहाँ पे देखो ये स्टेप अगर नहीं समझ में आ रही है तो देखो एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लूंगा यहाँ से, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस हाफ क्या होता है? हाफ, तो इस तरीके से हाफ बचेगा, सिर्फ हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू भी मुझे पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट? जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन। ओके, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है? पी थीटा डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो थीटा डॉट की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट, ये मिल गया मुझे h। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 इन दिस इक्वेशन, सो थीटा डॉट की वैल्यू वहां पे रख दो, तो थीटा डॉट की वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा? ये देखो, ये थीटा डॉट की जगह, यहाँ पे थीटा डॉट की जगह ये वैल्यू रख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है? पी थीटा डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है होल स्क्वायर। ओके, बाकी माइनस mgl cos थीटा सेम है, और बाकी ये वैल्यू भी सेम है, हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है? पी थीटा डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, और इसका स्क्वायर, तो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है? पी थीटा डिवाइडेड बाय एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां रख दिया और इसको स्क्वायर कर दिया माइनस mgl cos थीटा। तो सेम, अब इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, स्क्वायर करूंगा। ओके, आई विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। सो पी थीटा का स्क्वायर क्या होगा? पी थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। आफ्टर सॉल्विंग दिस, h इज इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ऐसा है ऐसा ही, पी थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस, बट यहां पे देखो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे के स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा, एक ही बचेगा यहाँ पे टर्म। वैसे यहाँ पे m है और यहाँ पे भी एक m कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही m बचेगा। न्यूमरेटर में एक m है, डिनोमिनेटर में एक m कैंसिल होकर ओनली 1 m बचा। के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल होकर एक ही बचेगा। ओके, नाउ तो क्या बचा अभी? हाफ पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। तो h जो बचा हमारे पास अभी जो बचा है इक्वेशन, इसमें h बचा है, h इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 11। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इस स्टेप में इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ का m कैंसिल हुआ, यहाँ का एक m कैंसिल हुआ, तो 1 m बचा। के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या क्या बचा यहाँ पे? h इज इक्वल टू हाफ पी थीटा स्क्वायर, यहाँ हाफ मतलब ये ट्वाइस m के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा, तो ये चीज बची। तो हैमिल्टोनियन, द फाइनल इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन फंक्शन इज h इज इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर and divided by twice m k square plus l square minus mgl cos theta. This is the equation number 11. तो ये बच गया मेरे पास, h मुझे मिल गया, हैमिल्टोनियन फंक्शन मुझे मिल गया। ओके, now we will use the Hamiltonian's canonical equation. So what is Hamiltonian's canonical equation? Now we will use Hamiltonian's canonical equation. You know that these are two equations. These two equations are called Hamiltonian's canonical equation. Del h by del qk is equal to minus pk dot, and
del h by del q pk is equal to qk dot. This is suppose equation number 12 and this is the Hamiltonian's canonical equation. H means Hamiltonian's function, qk is generalized position coordinate, pk dot is generalized momentum, okay, उसका derivative, pk is generalized momentum and qk dot is generalized velocity. So Hamiltonian's canonical equation, you have to remember these are. Now we will take the help of Hamiltonian's canonical equation to derive the equation of motion. So del h by del qk is equal to minus pk dot and del h by del pk is equal to qk dot. ये तुमको याद रखना है Hamiltonian's canonical equation. Suppose this is equation number 2, but here we are talking about the compound pendulum. तो कंपाउंड पेंडुलम में qk मतलब क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, qk मींस यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट और हमारी पोजीशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो qk की जगह यहाँ थीटा रखूंगा, pk की जगह p थीटा और qk डॉट की जगह थीटा डॉट. ये तुमको पता है, मैंने बताया था. फॉर कंपाउंड पेंडुलम के केस में pk क्या होता है, p थीटा, qk क्या होता है, थीटा, और qk डॉट क्या होता है, थीटा डॉट. ओके, तो इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम pk मोमेंटम मींस नथिंग बट p थीटा, qk positional means angular displacement is theta and qk dot means generalized velocity is nothing but angular velocity. तो put the value of pk, qk and qk dot in equation number 12. तो equation number 12 कैसे बनेगा, del h by del theta, qk means theta, del h by del theta is equal to minus p theta dot and del h by del p theta is equal to theta dot. इस तरीके से बनेगा equation number 12 become del h by del theta, qk की जगह थीटा रखा, is equal to minus p theta and del h by del pk, pk की जगह क्या रखा, p theta, del h by del p theta is equal to qk dot की जगह theta dot. So this is equation number. तो ये इक्वेशन को मैं कंपाउंड पेंडुलम के केस के लिए मॉडिफाई कर दूंगा. So this Hamiltonian's canonical equation will be modified as del h by del theta, qk की जगह थीटा रखो, pk की जगह p theta रखो, qk डॉट की जगह थीटा डॉट. So del h by del theta is equal to minus p theta dot and del h by del p theta is equal to theta dot. So this is equation number 13. So ये जो Hamiltonian's canonical equation है उसको मॉडिफाइड कर दिया कंपाउंड पेंडुलम, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट होता है थीटा के टर्म्स में, इसलिए थीटा के टर्म्स में इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, del h by del p theta is equal to theta dot. ये सेकंड कैनोनिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा. Just look at this second canonical equation in terms of theta. Del h by del p theta is equal to theta dot. और theta dot की वैल्यू तुमको पता है, थीटा डॉट की वैल्यू तुमको पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट, ये देखो थीटा डॉट की वैल्यू क्या है. थीटा डॉट की वैल्यू मैंने बताया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, p थीटा डिवाइडेड बाय m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. तो थीटा डॉट की वैल्यू रख दो वहां पर. ओके, सो सेकेंड कैनोनिकल इक्वेशन में मैं थीटा डॉट की वैल्यू रखूंगा. So this is second canonical equation, del h by del p theta की जगह थीटा डॉट की जगह मैंने वैल्यू रख दूंगा. तो क्या बनेगा, therefore the second canonical equation will become del h by del theta is theta dot. थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, p theta divided by m k square plus l square from equation number 10. So थीटा डॉट की वैल्यू रख दिया मैंने. थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, p theta divided by m k square plus l square. So del h by del p theta means theta dot और theta dot की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, p theta डिवाइडेड बाय m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t. देखो यहाँ पे थीटा डॉट है, थीटा डॉट इज इक्वल, अब इस बीच वाली टर्म को भूल जाओ, ये वाली टर्म याद रखो, थीटा डॉट इज इक्वल टू p थीटा डिवाइडेड बाय m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, और p थीटा क्या हो जाएगा, p थीटा डॉट, और m तो कांस्टेंट है, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा. नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो थीटा डॉट विल बिकम थीटा डबल डॉट. एक टाइम डेरिवेटिव, उसको और एक बार डेरिवेटिव कर दे तो डबल डॉट. सिंगल डेरिवेटिव मतलब एक डॉट, डबल डेरिवेटिव मतलब डबल डॉट. ओके, सो यहां पे थीटा डॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू p थीटा का डेरिवेटिव p थीटा डॉट, m कांस्टेंट है, m का डेरिवेटिव m ही रहेगा, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम रहेगा. सो देयरफॉर थीटा डॉट का डेरिवेटिव होगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू p थीटा का डेरिवेटिव होगा p थीटा डॉट, ओके, जैसा m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. ओके, सिंपल. सो इस इक्वेशन को मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो थीटा डॉट का डेरिवेटिव होगा थीटा डबल डॉट, p थीटा का डेरिवेटिव होगा p थीटा डॉट, m कांस्टेंट है वैसा रहेगा, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कांस्टेंट है तो वैसा रहेगा. अब इसमें से p थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो m k स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा, तो इसमें से p थीटा क्या रहेगा, p थीटा इज नथिंग बट
P theta dot is nothing but m into k square plus l square, m into k square plus l square और theta double dot. Okay, suppose this is equation number 14. तो ये जो टर्म है, ये टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया. So P theta dot is nothing but m k square plus l square, m k square plus l square into theta double dot. This is the equation number 14. तो ये P theta dot मिल गया मुझे, P theta dot मिल गया. अब सेकेंड कैनोनिकल इक्वेशन का यूज किया, अब मैं फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन का यूज करूंगा. देखो फिर से मैं लेके जा रहा हूं इस इक्वेशन पे. ओके, दिस इज द सेकेंड कैनोनिकल इक्वेशन. जस्ट लुक एट माय माउस एरो. दिस इज द सेकेंड कैनोनिकल इक्वेशन एंड आई हैव यूज्ड दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द p theta dot. But this is the first canonical equation. Now I want to use the first canonical equation, this. So what is first canonical equation? Del h by del theta is equal to minus p theta dot. But I know the value of p theta dot. अभी निकाला मैंने, लेकिन मुझे del h by del theta की वैल्यू पता है क्या? नहीं. So del h by del theta की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये h का देखो, इक्वेशन नंबर 11 देखो, ये h को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. Okay, just look at this equation number 11. If I partially differentiate this equation number 11, if I partially differentiate h with respect to theta, then I can easily get the value of del h by del theta. तो यहाँ पे थीटा कहाँ है? ये सेकंड टर्म में थीटा है. फर्स्ट टर्म में थीटा है क्या? नहीं, फर्स्ट टर्म में सिर्फ p थीटा है, मोमेंटम है, थीटा नहीं है. तो सिंगल थीटा कहाँ पर है? ओके, सोल थीटा कहाँ पे है? यहाँ पर सेकंड टर्म में, माइनस mgl cos थीटा. तो जब मैं इक्वेशन नंबर 11 को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सेकेंड टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई भी थीटा नहीं है. ओके, सिर्फ मोमेंटम है, थीटा नहीं है, इसलिए फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा. इफ आई डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 11, so I have to differentiate this second term only, first term जीरो हो जाएगी. तो कैसे करूंगा? del h by del theta, mgl तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकेंड कैनोनिकल इक्वेशन यूज करना, सॉरी फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन यूज करना है. तो फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन क्या बोलता है? del h by del theta, h का डिफरेंशिएट करो थीटा के टर्म में, तो क्या मिलेगा तुमको? माइनस p थीटा डॉट. सो डिफरेंशिएट 11, डिफरेंशिएट h विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो 11 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट 11, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 11 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो आई विल गेट del h by del theta, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस mgl और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा. देखो फिर से बता रहा हूं, ये देखो फिर से बता रहा हूं, इक्वेशन नंबर 11 देखो. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 11 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो del h पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, del h by del theta इज इक्वल टू, ये पहले टर्म का डेरिवेटिव जीरो, माइनस mgl कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा की बात कर रहा हूं. सो डिफरेंशिएट 11, इक्वेशन नंबर 11 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो वील गेट del h by del theta इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब पहली टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस mgl cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा. अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. तो del h by del theta, del h by del theta इज इक्वल टू mgl साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस mgl साइन इज इक्वल टू, और इस del h by del theta का मीनिंग क्या होता है? माइनस p थीटा डॉट. यूजिंग फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन देखो, del h by del theta की जो भी वैल्यू आएंगी दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस p थीटा डॉट. तो del h by del theta की वैल्यू हमें क्या मिली? del h by del theta की वैल्यू मुझे मिली mgl sin थीटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस p थीटा डॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस p थीटा डॉट फ्रॉम कैनोनिकल इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13. देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13, del h by del theta is equal to minus p theta dot. तो del h by del theta की वैल्यू क्या मिली मुझे? del h by del theta की वैल्यू मिली mgl sin theta, that is equivalent to minus p theta dot, that is from equation number 13. तो अब देखो del h by del theta, just look at my mouse arrow, del h by del theta is equal to mgl sin theta is equal to minus p theta dot. और p theta dot की वैल्यू तुमको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14. p theta dot की वैल्यू क्या है? m k square plus l square theta double dot. तो put the value of p theta dot from equation number 14 to this equation. तो p theta dot की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो in place of replacing p theta dot, in place of p theta dot I can write as m k square plus l square theta double dot from equation number 14. तो p theta dot की वैल्यू रख दो, because p theta dot
इज इक्वल टू माइनस mgl cos sin थीटा, बट p थीटा डॉट मुझे पता है कि p थीटा डॉट क्या होता है, m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 p थीटा डॉट की वैल्यू क्या होती है, p थीटा डॉट की वैल्यू होती है m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। देखो इस माइनस को मैं इधर भी शिफ्ट करूंगा, इस माइनस को अगर मैं इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा, p थीटा डॉट क्या हो जाएगा, माइनस mgl sin थीटा। सो p थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा, बट p थीटा की वैल्यू क्या होती है, p थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ओके, सो p थीटा डॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ओके, दिस द वैल्यू ऑफ p थीटा डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 और दैट इज इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा। अब m दोनों तरफ है तो m कैंसल, ओके m कैंसल। ओके, नाउ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा। ओके, इस साइड पे लेके जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो इस साइड पे लेके जाने के बाद कैंसिल होने के बाद मुझे मिलेगा k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस gl sin थीटा। ओके, तो इधर लेके नहीं जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल, तो अब बचा क्या मेरे पास, k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस gl sin थीटा। अब माइनस gl sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस gl sin थीटा इज इक्वल टू 0। Now dividing by k square plus l square on both side, dividing by k square plus l square, k square plus l square से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड से। सो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को, g बाय l को डिवाइड, j बाय l sin थीटा को डिवाइड कर रहा हूँ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 0 को k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 0 हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से यहाँ इस टर्म को डिवाइड किया, इस टर्म को भी k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से डिवाइड करा और 0 को डिवाइड करूंगा k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो 0 आएगा। सो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैंसल आउट। ओके, नाउ वी विल गेट थीटा डबल डॉट प्लस gl sin थीटा डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थीटा डबल डॉट प्लस gl upon k square plus l square sin theta is equal to 0. But initially we already said that the compound pendulum possesses small oscillation. So theta is small. बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस है, बहुत ही स्मॉल ऑसिलेशन। सो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो वील गेट साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है। तो एंगल अगर बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्विवेलेंट होती है। सो थीटा डबल डॉट इज, सो देयरफॉर अबव इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम थीटा डबल डॉट प्लस जीएल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा की जगह थीटा लगेंगे फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। सो वील गेट थीटा डबल डॉट प्लस जीएल के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये जो हैमिल्टन्स इक्वेशन का यूज करके हमने जो इक्वेशन लाया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंपाउंड पेंडुलम एंड वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन और हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब अगर टाइम पीरियड निकालना है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, जी थीटा डबल डॉट प्लस जीएल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड एंगुलर एसएचएम के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम का स्टैंडर्ड एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन क्या है, थीटा डबल डॉट। ओके, थीटा डबल डॉट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा डॉट मींस एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डबल डॉट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम का, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 0। सो यू जस्ट कंपेयर दिस बोथ दिस इक्वेशन, हियर इज थीटा डबल डॉट, हियर इज थीटा डबल डॉट, हियर इज थीटा, हियर इज थीटा। So what is the coefficient of theta here? GL upon k square plus L square. So here in place of GL upon k square plus L square, here is omega square. Means by comparing both the equation, we will get the value of omega square. So omega square means angular velocity is nothing but GL upon k square plus L square. So from by comparing these two equation, we will get omega square is nothing but GL upon, देखो थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, GL अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ थीटा का कोएफिशिएंट GL अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू GL अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसमें से अगर ओमेगा निकालेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ओमेगा निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल
टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये ओमेगा मिल गया। अब मुझे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल गया तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल गई, दिस इज अंडर रूट जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो टाइम पीरियड ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की जगह वो वैल्यू रख दूंगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाय जी इंटू एल के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो रिवर्स हो जाएगी टर्म, तो टी इज नथिंग बट 2 पाई, ये रिवर्स हो गई, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऊपर चला गया, जीएल नीचे आ गया, रिवर्स हो जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो टी इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएल। अब इसमें से एल कॉमन लूंगा। ओके, इन न्यूमरेटर आई विल टेक एल कॉमन, सो आफ्टर टेकिंग एल कॉमन, सो एल इज कॉमन, तो के स्क्वायर अपॉन एल, यहां से एक एल कॉमन लिया तो यहां एक एल बचा। ओके, तो यहां से एल कॉमन लूंगा तो के स्क्वायर बाय एल प्लस यहां से एल कॉमन लूंगा तो एल बचा। तो यहां एल कॉमन क्यों लिया, क्योंकि एल कैंसिल कर दूंगा मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एल कैंसिल। तो अब जो बचेगा टाइम पीरियड मेरे पास बचेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल डिवाइडेड बाय जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर कंपाउंड। इसका मतलब एक बार तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया तो उसके बाद टाइम पीरियड निकालना इजी है। यू जस्ट हैव टू कंपेयर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एसएचएम का ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा इज नथिंग बट टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा, और रख के तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो इसमें तुमको जो जो चीजें तुमको याद रखनी है इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखने के लिए, सबसे पहले तुमको लैग्रेंजियन निकालना है, और लैग्रेंजियन निकालने के बाद जो तुमको चीजें याद रखनी है वो हैमिल्टन्स इक्वेशन याद रखना है, ये वाला H इज इक्वल टू पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल। और तुमको ये मोमेंटम कॉन्जुगेट का ये फॉर्मूला याद रखना है, पी थीटा का डेल एल बाय डेल थीटा डॉट। तो तुम पी थीटा निकाल सकते हो, और पी थीटा निकाला, एल निकाला और थीटा डॉट निकाल, तो इसमें रख दो तो H मिल जाएगा। और H मिला तो उसके बाद तुमको हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन यूज करना है। H मिलने के बाद, ये H मिल गया तुमको यहां पर इक्वेशन नंबर 11 में, तो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन यूज करना है। और दो इक्वेशन हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन यूज करने के बाद, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन यूज करने के बाद फिर तुमको सेकंड कैनोनिकल इक्वेशन यूज करने के बाद पी थीटा डॉट की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन को थीटा के टर्म्स में ऐसे लिखोगे, तो सेकंड यूज करने के बाद तुमको थीटा डॉट की, सेकंड यूज करने के बाद तुमको पी थीटा की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट यूज करने के बाद तुमको डेल एच बाय डेल थीटा और इक्विवेलेंट टू पी थीटा, और दोनों कैनोनिकल इक्वेशन का यूज करके जो चीजें तुमको मिलेगी उसको इक्विवेलेंट करना है। और तुमको फिर देखो, फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन का सेकंड कैनोनिकल की इक्वेशन का यूज करके पी थीटा डॉट मिल गया, और यहाँ पे सेकंड कैनोनिकल इक्वेशन का यूज करके पी थीटा डॉट मिल गया। फर्स्ट कैनोनिकल इक्वेशन यूज करके तुमको फिर डेल एच बाय डेल थीटा ये वाली वैल्यू मिलेगी, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पी थीटा। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 14 और ये वाले इक्वेशन को, तो तुमको ये इक्वेशन मिलेगा, और इससे तुम इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो कंपाउंड पेंडुलम का। तो एल निकालने तक का प्रोसीजर सेम है, और एल के बाद का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है हैमिल्टोनियन से रिलेटेड। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं कंपाउंड पेंडुलम के लिए, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का यूज करके, हैमिल्टोनियन फंक्शन यूज करके, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन यूज करके।